Dear students, today I am going to teach you from the paper Indian Writing in English, that is in your MA 4th semester syllabus unit 5. The name of the paper is Indian Writing in English. So today we will discuss about Rabindranath Tagore, and there are 4 poems from Gitanjali that are given in your syllabus, and this is a world famous Nobel Prize winning book Gitanjali, and there are 4 poems. The name of the poems are that are in your syllabus are Light, Oh Where is the Light? Number 2, When My Play Was with Thee. Number 3, My Song Has Put Off Her Adornments. Number 4, Where the Mind is Without Fear. So my dear students, this is your MA 4th semester unit 5, and there are 2 more poems also by Nissim Ezekiel, that is Case Study and Poet Lover Word Watcher. ठीक है. Now first of all, before going through the poem, I would like to discuss something about Rabindranath Tagore, who was also known by the name Gurudev, Rabindranath Thakur, Rabindranath Tagore, and his another name was Bhanu Sima. Bhanu Sima means Sun Lion. It was his pseudonym. He was born on 7 May 1861 and died on 7th August 1941. He was a Bengali polymath. Polymath means he was a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer and painter. So he was a multi-dimensional personality of the Bengal Renaissance period. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize. Getting my point? What I am trying to say? First Asian to win the Nobel Prize in 1930 in any category. मीन्स उनसे पहले अब तक किसी ने पूरे एशिया में नोबेल प्राइज़ किसी भी कैटेगरी में नहीं जीता था, और वो फर्स्ट लिरिसिस्ट बने, नॉन यूरोपियन बने पहले टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. He wrote and composed the national anthem of India, Janagan Man, and Bangladesh, Amar Sonar Bangla. ठीक है. His some world famous works are, यहाँ पे मैं कुछ world famous works, although there are so many works composed by him, written by him, many novels, many poetry collections, but some famous are here. Gitanjali, which is also known by the name Song Offering. Ghar Bahir, which is also a very famous novel by Rabindranath Tagore, which was also known by the name Home and the World. And Chokher Bali, which was translated as A Grain of Sand. Kabuli Bala, Seser Kobita, Stray Birds, Chitrangda, Chaturanga, Gora, Sandhya Sangeet, Prabhas Sangeet, Mansi, Sonar Tari, etc. So these are some famous works by Gurudev Rabindranath Tagore. So my dear students, let me teach you the very famous song from Gitanjali that is also in your syllabus, and that is song number 35. In Gitanjali, actually Gitanjali is a collection of 103 songs from different collections of Gurudev Rabindranath Tagore, but here we are going to discuss song number 35. Let me tell you that it is the most patriotic song. It is the most patriotic song of Gitanjali. गीतांजलि का मोस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग है ये, देशभक्ति की भावना से भरा हुआ सॉन्ग है ये. एंड यू कैन से दैट इन दिस पोएम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ गिवन a beautiful image of free India, independent India. This song was composed when we were the slave of Britishers, we were the colony of Britishers. जब भारत एक गुलाम देश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय की लिखी हुई ये कविता है, रचना है. इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया है. वो कहते हैं कि मेरा देश जब आज़ाद होगा तो कैसा होगा. तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है कि मेरा देश कैसा होगा. एक राम राज्य की कल्पना यहाँ पे उन्होंने की है. तो लाइन बाय लाइन ये पोएम आपके सिलेबस में लगी हुई है, और कई
कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये पोयम है। तो यहाँ हम देखेंगे, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। क्या कहते हैं, कैसे सॉन्ग ओपन होता है? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जहाँ पे माइंड विदाउट फियर, हर किसी का मन निर्भय हो, हर व्यक्ति निर्भय हो। मतलब वो कहते हैं कि मेरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। माई कंट्री स्लीपिंग इन द डार्क स्लीप ऑफ द स्लेवरी, and after independence, when the people of my country will wake up in the dawn of freedom, then how will be the picture of my country? This thing he wants to show in this beautiful poem, कि मेरा देश जब गुलामी की नींद से जगेगा तब कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के नागरिक कैसे होंगे, क्या पिक्चर निकल के आएगी, क्या कैसी इमेजरी होगी मेरे देश की। वो कहते हैं मेरा देश कैसा होगा, जहाँ लोग निर्भय होंगे, क्योंकि उस समय लोग भय से भरे हुए थे, अंग्रेज़ों के भय से, कॉलोनाइजर्स के भय से। द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पे किसी का सिर शर्म से झुका नहीं होगा, कोई इन्फीरियर नहीं होगा, कोई सुपीरियर नहीं होगा, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो कौन सी दो चीज़ें हमने देखी? माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जब सब निर्भय रहेंगे तो सबका सिर गर्व से उठा रहेगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान सबके लिए होगा, ज्ञान किसी कुछ धनी व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, ज्ञान की कोई बंधन नहीं होंगे, ज्ञान किसी बंधन में नहीं बंधेगा। ज्ञान कैसा होगा? फ्री होगा जहाँ पे। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, आगे आप देखते हैं और कैसी कैसी इमेजरी यहाँ पे दी हैं पोइट ने, कि जहाँ पे जो संसार है, वेयर द वर्ल्ड, ये जो संसार होगा, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ नहीं होगा। किस में नहीं टूटा होगा? इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखो बेटा, यहाँ पे जो डोमेस्टिक वॉल्स है मतलब घरेलू दीवारें, संकीर्ण घरेलू दीवारें, छोटे छोटे टुकड़ों में, कैसे टुकड़ों में? संकीर्ण घरेलू दीवारों के टुकड़ों में मेरा देश टूटा हुआ नहीं होगा। अब यहाँ घरेलू दीवारों से पोइट का क्या मतलब है? द पोइट वॉन्ट्स टू शो दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर डिवाइडेड ऑन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड द रीज़न। धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे जो भारत के लोग थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन। तो कहते हैं कि जब देश आज़ाद होगा तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं सब यूनाइटेड हो जाएंगे और एक ही नाम से जाने जाएंगे, इंडियन, हम सब भारतीय हैं। ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ मेरे देश के जो नागरिक होंगे जो कुछ भी बोलेंगे सब सत्य ही बोलेंगे। ठीक है। वर्ड्स कम आउट, जो शब्द आएंगे कहाँ से आएंगे? हृदय की गहराइयों से, सच्चाई से। सच्चाई होगी, हर चीज़ में सच्चाई होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन में, वाणी में, कर्म में, सब में सत्य होगा, कोई झूठ की राह पर नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल इमेजरी पर्सोनिफिकेशन दिया है पोइट ने। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। आप देखेंगे हर लाइन में वेयर वेयर आ रहा है ना, मतलब एक किसी प्लेस की इमेजिनेशन हो रही है कि कैसा होगा वो प्लेस। तो यहाँ पे वो कहते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पे अथक परिश्रम, अथक परिश्रम, टायरलेस माने अथक, बिना रुके हुए, स्ट्राइविंग माने प्रयास, परिश्रम, स्ट्रेचेस माने फैलाना, हिज इट्स आर्म्स, अपनी बाहों को किसकी तरफ? परफेक्शन की तरफ। लेट मी मेक इट क्लियर। देखो यहाँ पे जब हम किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, तो हमें बिना रुके उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो वो प्रयास हमें कहाँ ले जाता है? परफेक्शन की तरफ ले जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इसको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया है कि जब आप, जहाँ मेरे देश के जो निवासी हैं निरंतर अथक प्रयास करेंगे और इस तरह से उनका प्रयास उनको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, उनका जो अथक प्रयास अपनी बाहें फैला देगा और वो उन्हें परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। मतलब साथ ही साथ यहाँ पे टैगोर बता रहे हैं कि वो जो मेरा देश जब आज़ाद होगा तो वो आलसी नहीं होंगे, वहाँ के लोग बिना रुके मेहनत करेंगे। देखिए आगे देखिए, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। देखिए क्लियर माने स्वच्छ धारा,
किसकी धारा, रीज़न, रीज़न माने लॉजिक, बुद्धि, तर्क, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता नहीं खोएगी, कहाँ, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। यहाँ पे देखिए जो डेड हैबिट्स वर्ड आया है, डेड हैबिट्स का मतलब होता है कुरीतियाँ, मृतक आदतें। मृतक आदतें कौन सी हैं? जैसे उस समय आप देखिए बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, बहुत सारी सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ थीं। तो इन कुरीतियों ने लोगों को अंधविश्वासी बना दिया था और उनका रीज़न, उनका तर्क खो गया था। टैगोर कहते हैं यहाँ पे कि जब देश आज़ाद होगा तो लोग अपना रीज़न यूज करेंगे, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे और उनके जो ज्ञान की ये अविरल धारा है वो निरंतर बहती रहेगी। वो अपना रास्ता ऐसे रेगिस्तान में नहीं खोएगी जहाँ पे डेड हैबिट्स हो। मतलब वो ब्लाइंडली, अगर हम सीधे शब्दों में कहें, ब्लाइंडली किसी भी डेड हैबिट को फॉलो नहीं करेंगे। किसी भी अंधविश्वासी होने के बजाय वो अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे वो कहते हैं वे द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी। अब यहाँ जो दी वर्ड आया है बेटा, ये आया है गॉड के लिए, ठीक है, क्योंकि गीतांजलि में टैगोर गॉड को ही एड्रेस कर रहे हैं हर पोएम में, ठीक है। और यहाँ पे गॉड को एज ए फादर उन्होंने एड्रेस किया है, एज ए फादर। किसी पोएम में एज ए लवर, किसी में एज ए मास्टर, किसी में एज ए गाइड, भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने गॉड को एड्रेस किया है अलग अलग पोएम्स में गीतांजलि की। यहाँ वो कहते हैं वे द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ मेरा मस्तिष्क, मेरा नहीं केवल हमारे देश के लोगों का मस्तिष्क आपके द्वारा मार्गदर्शित होगा, आपके द्वारा पथ प्रशस्त होगा, जहाँ के लोगों का एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। किस तरफ ले जाओगे आप हमें? एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। थॉट मतलब विचारों में भी और कर्मों में भी, एक्शन में भी आप हमारा मार्गदर्शन करोगे और इस तरह से हमारे विचार और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा और हम निरंतर तरक्की की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आगे वो कहते हैं, देखिए अब ये ऊपर से नीचे तक जितनी भी क्वालिटीज़ उन्होंने यहाँ बताई हैं, अब वो कहते हैं ऐसी हेवन में, क्योंकि देखिए बेटा जहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, माइंड इज़ विदाउट फियर, हेड इज़ हेल्ड हाई, नॉलेज जहाँ फ्री होगी, जहाँ संसार छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा होगा, जहाँ पे सब सत्य बोलते होंगे, जहाँ पे सब मेहनती होंगे, जहाँ पे कोई ब्लाइंडली कुरीतियों को फॉलो नहीं करता होगा, जहाँ पे सब ईश्वर में विश्वास रखते होंगे, तो ऐसी जगह किसी हेवन से कम नहीं होगी सर्टेनली, ठीक है। तो कहते हैं जब ऐसा स्वतंत्रता का जो स्वर्ग होगा मेरे परमपिता, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करो। लेट माई कंट्री अवेक। इट मीन्स कि मेरा देश जो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, गुलामी की नींद में अब तक सोया हुआ है, मेरे देश को आज़ाद करो, स्वतंत्र करो। और जब मेरा देश स्वतंत्र हो तो ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटीज़ मेरे देश में हों और वो एक हेवन से कम ना हो। तो इट इज़ द मोस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ गीतांजलि। आई होप दैट इट